آپ کو بتائیں کہ طالبان نے ہرات میں 4 اغوا کاروں کی لاشیں سرعام لٹکا دی ہیں۔ اہم خبر سے اس وقت ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ پنجشیر میں شمالی مزاحمت کاروں کا پیچھا کرتے طالبان کوہ ہندوکش پر چڑھ گئے۔ وزارت داخلہ نے اسکریپ بیرون ملک منتقلی پر پابندی لگا دی۔ بالکل، آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ طالبان نے ہرات میں 4 اغوا کاروں کی لاشیں سرعام لٹکا دی ہیں۔ پنجشیر میں شمالی مزاحمت کاروں کا پیچھا کرتے طالبان کو ہندوکش پر چڑھ گئے۔ وزارت داخلہ نے اسکریپ بیرون ملک منتقلی پر پابندی لگا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی شدت میں کمی آنے لگی ہے۔ ایک دن میں 1780 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ مثبت کیسز کی شرح 3.98% رہی ہے۔ 42 مریض اب تک دم توڑ گئے ہیں، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 27,566 ہو گئی ہے۔ NCOC کے مطابق 24 گھنٹے میں 44,712 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,780 کے نتائج مثبت آئے۔ مستونگ کے علاقے کلی محراب میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر مارا گیا۔ دہشت گرد ممتاز مطلوب افراد کی فہرست میں شامل تھا۔ کارروائی گزشتہ رات دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کی گئی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ ایک دن میں مزید 28 افراد متاثر ہوئے ہیں۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ بھی متحرک نظر آ رہی ہے۔ SOPs کی خلاف ورزی پر مقدمات بھی درج کر لیے گئے۔ عمر آصف اسی پر رپورٹ کریں گے۔ پنڈی والوں پر کورونا کے ساتھ ڈینگی مچھروں کے مہلک وار۔ اسپتالوں میں مریضوں کی بڑی تعداد پہنچنا شروع ہوئی تو ضلع انتظامیہ بھی ایکشن میں آ گئی۔ مختلف علاقوں میں ڈینگی کش اسپرے لاروے کی تلاش بھی جاری۔ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج، کئی مقامات سیل بھی کر دیے۔ 200 سے زیادہ FIRs ہیں، 500 کے قریب سیلنگز ہیں اور 1000 کے قریب ہم نے نوٹسز کیے ہیں۔ پیر ودائی اور IGAP روڈ کے قریب علاقے سب سے زیادہ متاثر۔ اہل علاقہ کہتے ہیں اسپرے کا عمل تیز کیا جائے اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ ریکویسٹ ہے حکومت سے کہ پانی جب سر سے اوپر گزر جائے گا تب کام کریں گے، تو برائے مہربانی آپ کوئی ایسا عمل دیں اور اس کو بڑھنے سے روکیں۔ راولپنڈی شہر میں رواں سیزن کے دوران اب تک ڈینگی کے 99 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ کیمرامین ذوالفقار علی کے ساتھ عمر آصف، سما، راولپنڈی۔ تو کرونا کا خطرہ ٹلا نہیں اور ڈینگی نے پر پھیلا لیے۔ یومیہ ڈینگی بخار میں مبتلا سینکڑوں مریضوں کو اسپتالوں میں لایا جا رہا ہے۔ پشاور کی صورتحال بھی جانیں گے سما کے نمائندے سے۔ ہمارے جو نمائندگان ہیں انہوں نے مختلف شہروں سے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بالکل، لاہور سے عائشہ عطا جوائن کر رہی ہیں، جبکہ راولپنڈی سے صداقت علی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اس کے علاوہ رحم یوسف زئی پشاور سے ہمارا ساتھ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم لاہور کی جانب رخ کرتے ہیں۔ عائشہ عطا ہمارے ساتھ ہیں۔ عائشہ بتائیے گا، لاہور کی تو بڑی بری صورتحال تھی۔ 2 بڑے مشہور ٹاؤنز ہیں جہاں پر بتایا جا رہا تھا کہ وبا بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ کوئی اچھی خبر نہیں ہے لاہور سے۔ اگر اوور آل لاہور کی بات کی جائے تو پہلے کرونا کے خطرے جو تھے وہ نہیں ٹلے تھے کہ اس پر ڈینگی نے بھی جو ہے وہ اب پر پھیلا لیے ہیں۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو اس وقت 24 گھنٹوں کے دوران 81 کی رپورٹ ہوئی ہیں اور اوور آل لاہور میں 971 کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے تو پنجاب بھر میں 1082 کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ محکمہ صحت کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ڈفرنٹ اعداد و شمار ہمیں اسپتالوں کے دیے گئے ہیں، اس میں گنگا رام اسپتال کی اگر بات کی جائے تو اس میں 8 مریض جو ہیں وہ اس وقت زیر علاج ہیں۔ اسی طرح سے اگر جنرل اسپتال کی بات کی جائے تو اس میں 6 مریض جو ہیں وہ زیر علاج ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اگر بات کی جائے گڑکی اسپتال کی یا دیگر اسپتالوں کی تو 4 مریض جو ہیں وہ ان میں بھی زیر علاج ہے۔ اس وقت میں سروسز اسپتال کے باہر موجود ہوں۔ یہاں پر 10 مریض جو ہیں وہ ڈینگی وائرس کے اس وقت رپورٹ کیے گئے ہیں اور اس کا ایک ہی حل جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ شہری جو ہے وہ احتیاط کریں اور گھروں میں جو ہے وہ پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں۔ اسی طرح سے اگر بات کی جائے محکمہ صحت کی اور ان کی ٹیموں کی تو بالکل گھر گھر جا کر جو ہے وہ اپنے کام، اپنی جو ذمہ داری ہے وہ بھی سر انجام دے رہی ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران 70 ڈینگی لاروا جو ہیں وہ ان کو بھی تلف کیا گیا اور سب سے زیادہ خطرناک جو ایریاز بتائے جا رہے ہیں لاہور کے پوش علاقہ جیسا کہ ڈیفنس ہے، گلبرگ ہے، اسی طرح سے اقبال ٹاؤن ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کے ملحقہ جو علاقے ہیں یہاں پر گھر جو ہوتے ہیں ان میں گرینری جو ہے وہ زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے، گارڈنز ہوتے ہیں جن میں پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ پانی کو گھروں میں جو ہے وہ جمع نہ ہونے دیں اور خدشہ یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ابھی لاہور کے جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں وہ 81 اور اوور آل جیسا کہ میں نے بتایا کہ 971 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں ان کیسز میں جو ہے وہ مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر حکومت کے ساتھ ساتھ شہری تعاون نہیں کرتے تو یقیناً ان کیسز میں اضافہ ہوگا۔ بالکل، اگر
शहरी ताउन नहीं करेंगे तो यकीनन इन केसेस में इजाफा होगा। रावलपिंडी की सूरत हाल जानते हैं, सदाकत अली हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं। सदाकत अली, क्या आदाद शुमार सामने आ रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त रावलपिंडी के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर डेंगू के वार जो है वो तेज़ी के साथ जारी हैं। जुड़वा शहर और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस वक्त मजबूरी तौर पर जो डेंगू के मरीज़ हैं उनकी तादाद 132 हो चुकी है, जबकि मज़ीद 34 जो मरीज़ हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं। रावलपिंडी के जो इस्लामाबाद के जो इलाके हैं वहाँ पर जो डेंगू का स्प्रे है, इस मरतबा जो इंतज़ामिया की जो गफलत का जो मुजाहरा किया गया है कि इस वक्त बर वक्त डेंगू का स्प्रे और फोगिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से डेंगू का मर्ज जो है वो अब तेज़ी फैल रहा है और मच्छरों की अफजाइश जो है वो तेज़ी के साथ हो रही है। ज़रा इंतज़ामिया ने जैसे ही मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ तो फौरी तौर पर रावलपिंडी के तीनों बड़े अस्पतालों बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल, होली फैमिली अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डेंगू के आइसोलेशन वार्ड्स जो है वो बना दिए। चूँकि इससे पहले कोरोना के लिए जो वार्ड्स बनाए गए थे उसके बाद अब डेंगू के लिए उनको मज़ीद वार्ड जो है आइसोलेट करने पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इंतज़ामिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हम ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो दूसरे अजला से रावलपिंडी में लाए गए हैं, जिस तरह इस्लामाबाद, एबटाबाद। यानी आप बता रहे हैं कि जो वहाँ पर ज़्यादातर मरीजों की जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वो दूसरे अजला से आ रहे हैं। हम पेशावर का रुख कर लेते हैं, रहम यूसुफजई हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रहम, आप बताइएगा क्या फैक्ट्स एंड फिगर सामने आ रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो यहाँ पर कोरोना का जोर तो टूट रहा है, मगर डेंगू का जोर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सिर्फ इसी रवा माह सितंबर की अगर हम बात करें तो 916 केसेस रिपोर्ट, जबकि 9,000 तक तकरीबन टेस्ट किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक ये केसेस से भी ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ वही केसेस जो रिपोर्ट हुए हैं। इस वक्त अगर हम अस्पतालों की बात करें तो पेशावर के तीनों तदरीसी अस्पताल में इस वक्त डेंगू के लिए जो मुख्तस किए गए हैं और मरीज भी कुछ दाखिल है। इस वक्त पेशावर के अस्पतालों में 50 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 866 मरीज मजबूरी तौर पर पूरे सूबे में वो सेहतियाब होकर घरों को वापस जा चुके हैं। ताहम महकमे सेहत के मुताबिक अगर इसी तरह लोगों की बेहतियाती से जारी रही तो डेंगू का जो है मजीद जोर बढ़ता जा रहेगा और इसके अलावा उनको हंगामी बुनियाद पर इक़दाम उठाने पड़ेंगे। इस हवाले से वज़ीर आला की ज़ेर-ए-सदार एक अहम इजलास भी हुआ है, अहम इजलास भी हुआ है और इस पर अमल किया जा रहा है कि किस तरह से अमल दरामद करना चाहिए। बेहद शुक्रिया, तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ थे। लाहौर से आयशा अता, जबकि रावलपिंडी से सदाकत और पेशावर से रहम यूसुफजई ने हमारा साथ दिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। अरकान पंजाब असम्बली, वज़रा और ओहदेदारान को टास्क सौंप दिए गए। पहला वर्कर्स कन्वेंशन आज लाहौर में होगा। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में तहरीक इंसाफ ने भी अपना रोड मैप तैयार कर लिया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ अजला में वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद किया जाएगा। आज इसी हवाले से पहला कन्वेंशन लाहौर में होगा, जिसमें वस्ती पंजाब के सदर सेनेटर इजाज चौधरी जो है वो शुरा को ब्रीफ करेंगे और उसके बाद मुख्तलिफ जो अजला के PTI के अहदेदार हैं और जिनका अपने अपने हलकों से ताल्लुक है, चाहे वो कौमी असम्बली से ताल्लुक हो या पंजाब असम्बली से, उनको भी टास्क सौंपा जाएगा कि वो वर्कर्स कन्वेंशन करें और बल्दियाती इंतखाबात की अहमियत बारे अपने कारकुनान को आगाह करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इस हवाले से आपने आगाह किया मोहसिन। बलूचिस्तान की सियासत में हलचल। तहरीक अदम एतमाद के बायस वज़ीर आला की कुर्सी खतरे में। जाम कमाल को दौरा इस्लामाबाद में भी खातिर खा कामयाबी ना मिल सकी। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान समेत अहम हुक्काम से मुलाकातें की, लेकिन तहरीक अदम एतमाद का खतरा टलने की कोई हौसला अफजा यकीन दहानी ना मिल सकी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जाम कमाल को नाराज अरकान को मनाने का मशवरा दे दिया। सादिक संजरानी ने कहा, सूबाई असम्बली के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। बलूचिस्तान असम्बली के 35 से ज़ायद अरकान वज़ीर आला जाम कमाल को हटाने के लिए मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने मामले का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया। और अब आपको बताएं कि समा का तहलका काम कर गया। सिंध में स्कूल डेस्क स्कैंडल उठाने पर जाली सरकार को पीछे हटना पड़ गया। तहकीकाती कमेटी की सिफारिश पर वज़ीर आला और वज़ीर तालीम ने डेस्क खरीदारी का 3.5 अरब का वर्क ऑर्डर फौरी मनसूख करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट करेंगे संजय साधवानी। सिंध के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। समा ने डेस्कों की खरीदारी में बड़ी करप्शन का भांडा फोड़कर महकमा तालीम सिंध के अरबों रुपए डूबने से बचा लिए। बिलाखिर 7,000 रुपए वाली डेस्क 29,000 में खरीदने का ठेका मंसूख कर दिया गया है। महंगी डेस्क खरीदने का ठेका साबिक वजीर तालीम सईद गनी के दौर में दिया गया था। वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की हिदायत पर बनाई गई कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी के तमाम वर्क ऑर्डर्स
मंसूख करने की सिफारिश कर दी है। कमेटी ने डेस्कों की खरीदारी सेपरा के मुरव्वजा कवानीन के तहत डिविजनल सतह पर करने की सिफारिश की है। डिविजनल प्रोक्यूरमेंट के तमाम अमल को सूबाई सतह पर मॉनिटर करने की भी सिफारिश की गई है। समा ने 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध का महंगी डेस्कों की खरीदारी का ठेका बेनकाब किया था, जिसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 13 सितंबर को वजीर आला सिंध को लिखे गए खत में ठेका मनपसंद कंपनी को देने की निशानदेही की थी। महकमा तालीम सिंध के जराये का कहना है कि डेस्क खरीदारी के ठेके में मुबैना अरबों रुपए की करप्शन होना थी। कमेटी की तहकीकात में मुमकिन करप्शन की तफसीलात सामने आने के बाद वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और सरदार शाह ने कमेटी सिफारिशात पर मुश्तरका तौर पर टेंडर मंसूख करने का फैसला किया। अब डेस्कों की खरीदारी की कीमतों का असर नौ जायजा लेने के बाद नया टेंडर जारी किया जाएगा। नए माफिया की एंट्री, तफसीलात जानिए कुछ देर बाद। और अभी आपको बताएं कि ग्रीन लाइन बसें अगले महीने सड़कों पर होंगी। वजीर आजम कल कराची में KCR का संगे बुनियाद रखेंगे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 2023 के आखिर तक K4 मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। मुतवातिर तरीके से खुशखबरियाँ कराची के लिए आ रही हैं। ग्रीन लाइन बस सर्विस आपने देखा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी कंप्लीट हुआ, आपने देखा उसकी बसें भी कराची पहुंच गई हैं। अगले 10 दिन के अंदर उसका हम ड्राई रन शुरू कर देंगे। बसों को हम आप शायद देखेंगे अपने ब्रिजेस पर चलते हुए, जो उनका कॉरिडोर है उस पर आप चलते हुए देखेंगे। अब वज़ीर आज़म साहब कल कराची आ रहे हैं, वो KCR का संग बुनियाद रखेंगे और इसके बाद आपको इंशाल्लाह अगले महीने हम ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर देंगे और उसके बाद फौरी बाद K4 का भी इंशाल्लाह इफ्तिताह हो जाएगा और K4 भी 2023 के ख़त्म होने से पहले कंप्लीट हो जाएगा और कराची को पानी की जो कमी है उसको पूरा कर दिया जाएगा। और ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए चीन से दरामदशुदा 40 बसें सरजानी डिपो मुंतकिल कर दी गई हैं। बसों में कौन कौन सी सहूलियात मौजूद हैं, सलमान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं। कराची पोर्ट से सुरजानी डिपो ग्रीन बसें अपने पहले सफर के बाद पहले स्टॉप पर पहुंच गईं। 40 की 40 ग्रीन बसें जदीद सिस्टम से लेस हैं। 18 मीटर लंबी बस में फोन चार्ज करने की सहूलत है। प्रीपेड के साथ मैनुअल टिकट भी दस्तयाब होगा। यही नहीं जनाब, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बसों को स्टेशन और कंट्रोल रूम से मुंसलिक करेगा। यहाँ डोर के साथ ही वैलिडेटर इंस्टॉल होंगे। वो अपना कार्ड जो है वैलिडेटर पर स्कैन करेगा और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकेगा। अगर उसके पास कार्ड नहीं है तो उसको स्टेशन को अप्रोच करना होगा, स्टेशन पे क्यू में आना होगा उसको और काउंटर से अपना टिकट लेना होगा। ग्रीन बसों के लिए तजुर्बाकार ड्राइवर भर्ती किए गए हैं। ड्राइवर अभी तक हमने तकरीबन कोई 250 ड्राइवर हमने हायर कर लिए हैं। बाकी तफसीली ट्रेनिंग ये जो बस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो देंगे। बस के दरवाजों पर व्हील चेयर के लिए खुदकार रैंप हैं। सुरजानी टाउन बस डिपो में मौजूद ये बसें ग्रीन लाइन ट्रैक पर भी आएंगी, लेकिन बस थोड़ा इंतजार करना होगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। हुकूमत ने गैस सार्फिन के लिए महंगाई का नया शिकंजा तैयार कर लिया। माहाना बिलों में 500 से 9,000 रुपए तक इजाफे का मंसूबा बना लिया गया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। मौसम बदलने से पहले हुकूमत की नीयत बदल गई। गर्मियों में बिजली के बिलों से अवाम पर बिजलियां गिराने के बाद सर्दियों में गैस के जरिए महंगाई की आग लगाने का फैसला। मौसम सरमा के दौरान नया गैस बम तैयार। गीजर या हीटर का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा। गैस सार्फिन के बिलों में होशरुबा इजाफे का मंसूबा बन गया। घरेलू सार्फिन के लिए गैस के माहाना बिल में 562 रुपए से लेकर 9,128 रुपए तक इजाफे की तजवीज सामने आ गई। माहाना 100 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन की तो बचत हो गई। ये सार्फिन मजमूई तौर पर 57% गैस इस्तेमाल करते हैं और उनका हजम 78% है। मगर 200 क्यूबिक वालों को 562 रुपए, 300 वालों को 2,256, 400 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वालों को 5,095 रुपए इजाफी बिल भेजा जाएगा। 400 क्यूबिक मीटर की हद दूर की तो 9,128 रुपए की बड़ी फकी पक्की समझे।
दस्तावेज के मुताबिक जो सार्फ पहले 14,400 रुपए बिल अदा कर रहा था, उसे 19,495 रुपए, 25,494 रुपए वाले को 34,622 रुपए बिल देना पड़ेगा। गैस के बिलों में इजाफे का जवाब सार्फिन की तलब में इजाफा और ज़खायर में कमी बताई गई है। मुजवजा इजाफे का इतलाक नवंबर 2021 से फरवरी 2022 तक होगा। अब आपको बताएं कि हुकूमत ने कौम से टैक्स फ्री बजट का झूठ बोला था। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत को निशाने पर ले लिया, खूब तनकीद के नश्तर चलाए, बोले कौम को महंगाई से मारने के बजाय इमरान नियाजी घर चले जाएं। शहबाज शरीफ ने गैस की कीमतों में 35% तक इजाफे की इतलात की शदीद मजम्मत करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि गैस की कीमतों में इजाफा बिला जवाज और हुकूमत की एक और संगीन हिमाकत है। अवाम में मजीद महंगाई बर्दाश्त करने की हिम्मत और सकत नहीं, जुल्म दर जुल्म बंद किया जाए। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में है और सबसे कम आमदन भी पाकिस्तान में है। एक और अहम मामला, ओवर बिलिंग क्यों की? नेपरा ने बिजली सार्फिन से जायद बिलों की वसूली का नोटिस ले लिया। नेपरा का ओवर बिलिंग और सार्फिन की शिकायत पर अवामी समाअत का फैसला कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। वहाब, समाअत कब और कहाँ होगी? देखिए जी, 30 सितंबर को इस्लामाबाद में नेपरा हेडक्वार्टर में इस हवाले से समाअत होनी है। गुज़श्ता दिनों एक मामला उठाया गया था अवाम की जानिब से भी। बिजली की मुख्तलिफ तकसीमकार कंपनियों पर ये इल्ज़ाम लगाया था सारिफिन ने कि उनसे ओवर बिलिंग की गई है उन पर, और 31 दिनों से ज़्यादा जो है वो शामिल किए गए हैं बिलों में, जिनमें मुल्तान, सखर, कराची, लाहौर, हैदराबाद, गुजरांवाला और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों के हवाले से ये शिकायत मौसूल हुई थी नेपरा को भी। और इसी हवाले से अब नेपरा ने अवामी समाअत का फैसला किया है। 30 सितंबर को इस्लामाबाद में समाअत होगी, जिसमें लोगों को भी शामिल होने की दावत दी गई है, और उस समाअत के बाद अगर कंपनियों को कसूरवार ठहराया गया तो उन पर फिर ज़ाहिर जुर्माना आयद किया जाएगा। अथॉरिटी की के लिए शुक्रिया वहाब। दूसरी जानिब फैसलाबाद में हुकूमती ऐलानात के बरक्स चीनी और घी की कीमतें कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई हैं। 3 रोज़ के दौरान चीनी 8 और घी 10 रुपए फ़ी किलो महंगा हो गया है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान सिद्दीक। जी बिल्कुल, हुकूमत ने जिस भी चीज़ पे नोटिस लिया, महंगाई ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। आज से चंद रोज़ कबल हुकूमत की जानिब से चीनी 90 रुपये फ़ी किलो जबकि घी 50 रुपये फ़ी किलो तक सस्ता करने के ऐलानात किए गए, लेकिन मामलात इसके बरक्स हो गए। फैसलाबाद की मार्केटों में इस वक्त चीनी गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान 8 रुपये फ़ी किलो महंगी होकर 115 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है, जबकि घी 360 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँचा है, जिसकी कीमतों में 10 रुपये फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। अवाम परेशान है, जिनकी जानिब से हुकूमत पे तनकीद भी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जब भी महंगाई को कंट्रोल करने का ऐलान करती है, माफिया एक्टिव हो जाता है और चीज़ें दोगुनी महंगी हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ चीनी और घी के रिटेलर्स का ये कहना है कि चीज़ें पीछे से महंगी आती हैं, वो किस तरह से इनको सस्ता कर दें। जो चीनी बनाने वाली मिलें हैं उनकी जानिब से कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो ही मार्केट में चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। ताहम आवाम का ये कहना है कि हुकूमत पहले तो ऐलानात ही ना करे, क्योंकि हुकूमत के ऐलानात पे चीज़ें दुगनी महंगी हो जाती है, लेकिन उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि अगर हुकूमत ऐलान करती है तो उस पर अमल भी करवाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। तो पाकिस्तान में जो हुआ मायूस कुन है। दौरे मनसूखी का फैसला हमारे हाथ में नहीं था। दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर न्यूजीलैंड टीम के हेड कोच का बयान। गैरी स्टेट कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन का दर्द महसूस कर सकते हैं। पाकिस्तान जाने वाले 5 खिलाड़ी यूएई में हैं। खिलाड़ी मुत्तहदा अरब इमारात में वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप में पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। कीवी कोच ने कहा कि ये मैच हमारे लिए दूसरी टीम्स की तरह है। और आपको बताएं कि साबिक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एन चैपल भी पाकिस्तान के हक में बोल पड़े। कहा इंग्लिश बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ खुद गर्जी दिखाई, दौरे मंसूख करके नारवा सलूक किया गया। पाकिस्तान ने इंतहाई मुश्किल हालात में इंग्लैंड का दौरा किया था। नेक नियति से क्रिकेट की बेहतरी के लिए सोचना होगा। लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की इलाज के लिए अमेरिका रवानगी कल मुतवक्के है। उमर शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया जाएगा। उमर शरीफ की पहली बीवी और 2 बेटे 28 सितंबर को अमेरिका जाएंगे। महकमा सेहत ने तीनों फैमिली मेंबर्स के लिए टिकट्स बुक करवा दिए हैं। ज़राए के मुताबिक महकमा सेहत ने उमर शरीफ की पहली अहलिया, बेटे जवाद और फवाद के टिकट्स बुक करवाए हैं। अमेरिका जाने वालों में उनकी तीसरी बीवी ज़रीन उमर शामिल नहीं। और अभी आपको बताएं कि आर्ट्स काउंसिल कराची में तकरीब मिज़ानेगार अनवर मकसूद की खट्टी मीठी बातों से महफिल कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। जमात तक फ़ारसी ज़रूरी थी पढ़ना। अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है MA तक सिंधी ज़रूरी हो जाएगी। उर्दू
एक समंदर है मचलता हुआ, उसके आगे कोई भी दीवार खड़ी करेगा वो तोड़ के आगे निकल जाएगी। तो हम लोग खेमों में रहे और बड़े इत्मीनान से रहे। इंसान तबाह जब होता है जब ख्वाहिशात शुरू होती है। सदर में बोरी बाज़ार में टाई बना के और कफलिंग्स बना के बेचता था। मैं जब 50-50 कर रहा था टीवी के ऊपर और शोशा, मैं बस से जाता था। ना मेरे पास मोटरसाइकिल थी, ना मेरे पास गाड़ी थी, मगर मुझे किसी बात का अफसोस नहीं है कि बुरा वक्त अच्छे लोगों पर ही आता है। इस शहर ने बहुत कुछ दिया हमको, बहुत बड़ा शहर है। जैसे कुछ वक्त ने कहा, ये माँ है और माँ की बाहें तो खुली रहती हैं हमेशा। रोशनी, पानी पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, ये हर एक का हक़ है। ये हक़ हमको मिलना चाहिए। यही हक़ नहीं मिल रहा है। पानी मिल जाए, अगर पानी मिल जाए तो शायद हम डूब के मर जाएं। 3 करोड़ की आबादी है। असद साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अब अगर मर्दमशुमारी की जाए सिंध की, कराची की, तो खुदा के वास्ते सिर्फ मर्दों को ना गिने, औरतों को भी गिने। ये लोग मर्दम से मर्द समझते हैं कि मर्दों को गिन लेते हैं सिर्फ। बिल्कुल गलत मर्दमशुमारी हुई है। इस शहर की तादाद देखें आप, अब बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये कोविड में और बढ़ गई, जिसके ज़िम्मेदार ये हैं। मुल्क की माशी तरक्की से आगे बदमाशी तरक्की चली जाए तो फिर कोई तरक्की नहीं। और ये कि हर चीज़ ईमानदारी, मतलब बेईमानी लीगल हो गई है। जिस मुल्क में बेईमानी लीगल हो जाए वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अल्लाहु अकबर। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।